آپ لوگ جو ہم سب جو خامخواہ کے غموں میں خامخواہ کی پریشانیوں میں جا رہے ہیں تو نہ جایا کریں, لائف کو انجوائے کریں. اللہ نے ہمیں اصل میں خوشیاں دی ہیں, ٹینشنیں تو صحابہ نے اٹھائی ہیں, سمجھ رہے ہو, پریشانیاں تو ان لوگوں نے اٹھائی ہیں, میدان جنگ میں کٹتے تھے, شہید ہوتے تھے, بھوک اس سے یہ حالت ہوتی تھی. قرآن کہتا ہے او مسکینن ذا متربہ, ایسے مسکین کو کھانا کھلاؤ جس کو بھوک نے اس کے پیٹ کو مٹی سے ملا دیا ہو, زمین پہ پڑ جاتے ہیں نا بھوک کی وجہ سے. وہ لوگ تھے اصل میں جن کو پریشانی تھی, غربت کی, مہنگائی کی. ہمیں وہ پریشانیاں نہیں ہیں, ہم غریبیوں پہ اعتماد کر کے بیٹھ گئے ہیں. تو خوش رہنا سیکھو. اللہ کو یہ نا ٹیڑے میڑے چہرے پسند نہیں ہے, ہر وقت مصیبت میں یار یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں مل رہا, یوں نہیں مل رہا, ایسے نہیں ہو رہا. یہ اللہ کو خوشی نہیں ہوتی, اللہ کو غصہ آتا ہے. دیکھو ایک باپ اپنے بیٹے کو کھلاتا ہے, پلاتا ہے, اس کو مختلف چیزیں دے رہا ہے, بلکہ باپ سے زیادہ شوہر کی مثال زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. ایک شوہر اپنی بیگم کو کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی ہے, اس کو شاپنگ بھی کراتا ہے, اس کو تمام نعمتیں دے رہا ہے, بیگم ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہے. کتنا غصہ آئے گا نا مرد کو, کیونکہ ہم لوگ آدمی ہیں نا, ہم لوگ کو پتا ہے ان چیزوں کا. کتنا غصہ آتا ہے نا آدمی کا, بیگم کبھی منہ پہ مسکراہٹ بھی لے آیا کرو, کبھی اچھا بھی بول دیا کرو. ایک آدمی کسی کے گھر گیا, میزبان نے کہا یہ کھانا کھائیے, مہمان نے کہا نہیں, میزبان نے کہا کبھی اچھا بھی کھا لیا کریں, آ جائے کھانا کھا لیا, ٹھیک ہے نا. تو کتنا غصہ آتا ہے نا آدمی کو ناشکری بیوی پہ. بھائی بیگم کبھی منہ سے اچھا بھی بول دیا کرو, تو اس کو اتنا غصہ نہیں آتا. آپ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اللہ کو آتا ہے کہ ان کو ساری نعمتیں مل رہی ہیں, ساری خوشیاں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں. ان کو ٹینشن اس کی ہو رہی ہے میرا بچہ سٹی اسکول میں کیوں نہیں پڑھ رہا, پیکن ہاؤس میں کیوں نہیں پڑھ رہا, اور مجھے ذاتی گھر کیوں نہیں مل رہا. اللہ کو غصہ آتا ہے ان چیزوں پہ. تو اللہ کو خوش لوگ پسند ہیں, سمجھتے ہو. غمزدہ لوگ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. غم صرف ایک اٹھاؤ, آخرت کا غم. کون سا اٹھاؤ؟ آخرت. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے, ان کو جب کوئی دنیا کی مصیبت پہنچتی ہے نا, تو ان کو غمزدہ ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. غمزدہ ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اللہ کہے گا اتنی خوشیاں تجھے دی ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ آخر عمر میں بیمار ہو گئے, تو جب کوئی ان کے پاس عیادت کے لیے جاتا نا, تو ایک عالم آئے ان کی خدمت میں, عیادت کے لیے گئے اور کہنے لگے آپ کو دیکھ کے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا مجھے تو ہو نہیں رہی, آپ کو پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے. انہوں نے فرمایا کہ میری عمر 70 سال سے زیادہ ہو گئی ہے, ابھی بیمار نہیں ہوں گا تو کب ہوں گا بیمار بھائی. اب تو اس عمر میں تو زیادہ تر لوگ مر چکے ہوتے ہیں, ہم زندہ ہیں, اس میں غنیمت ہے بھائی, تو ٹینشن نہیں لے رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں بیمار ہوں گے تو کب ہوں گے بھائی, تو بیماری کی عمر ہے بھائی, اب تو جو ہے غریبی چل رہا ہے. پھر بھی مانتے نہیں تھے کہ میں بیمار ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ کو بیمار کہتے ہوئے. بلکہ حضرت تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے اگر بیمار ہو نا دوائیں چھپ کے کھایا کرو, دنیا کو نہ بتایا کرو میں بیمار ہوں, میں یہ ٹیبلٹ. آج کل دوائیں کھانا فیشن بن گیا ہے. جتنا بڑا آدمی ہوگا نا شوگر کی گولیاں کھا رہا ہوگا, یہ ایک فیشن ہے کہ سر جو ہے صبح یہ ٹیبلٹ لیتے ہیں, شام کو یہ ٹیبلٹ کھاتے ہیں. غریب آدمی ٹیبلٹ بیچارہ وہ پاپے چائے میں ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہوتا ہے. یہ مالداروں کے مسائل ہیں کہ سر آپ کی شوگر کہاں پہنچ چکی ہے, ٹھیک ہے نا. مالدار جس کو شوگر نہیں ہے غریب آدمی ہے, اس کو شوگر ہی نہیں ہے, یہ تو فیشن ہے نا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بیمار بھی ہونا دوائیں چھپ کے کھایا کرو, لوگوں کے سامنے اپنی کمزوریوں کو اور بیماریوں کو شو مت کرو, سمجھتے ہو. کہا کہ صحیح ہے, بس آپ ٹھیک ہیں, بہترین ہے. یہ کچھ زیادہ تقویٰ ہو جائے گا, آپ کھا لیں, ایسا نہ ہو شوگر ہو گئی آپ چھپ کے کہیں جگہ نہیں مل رہی تو مر ہی گئے. اب جو دواؤں کا عادی ہو جاتا ہے وہ تو کیا چھپ کے کھائے گا, وہ تو کھلے عام کھاتا ہے. اچھا کچھ دوائیں نہیں ہیں, وہ کہلاتی ہیں دوائیں, جیسے ملٹی وٹامن گولیاں, یہ کوئی دوائیں نہیں ہیں. اگر یہ کوئی کھا رہا ہے تو یہ کوئی دواؤں کی فہرست میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں. تو لیکن جو بیماریاں ہیں نا, جس کو لوگوں نے بیماریاں سمجھ رکھے ہیں, ان کو بیماریاں سمجھ لیا ہے, تو کوشش یہی کرو بھائی ہم صحت مند ہیں, ہم سب ٹھیک, سب کیا چل رہا ہے, اوکے کی رپورٹ چل رہی. جب کوئی پوچھا کرے کیا حالات ہیں, بولو سب اوکے کی رپورٹ ہے. رپورٹ کا لفظ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ رپورٹوں پہ لوگوں کو یقین ہوتا ہے. دیکھو آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے جگر ٹھیک کام کر رہا ہے, لیور ٹھیک ہے, آپ کا کڈنی ٹھیک ہے, وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے. آپ کہیں گے رپورٹ ہے تمہارے پاس, لیب سے رپورٹ ہے, وہ کہے گا ہاں جی یہ رپورٹ ہے, تو رپورٹ دیکھ کے یقین آ جائے گا نا. تو صرف یہ نہیں بتایا کرو میں خیریت سے ہوں, آپ بولو میرے پاس خیریت کی باقاعدہ رپورٹ ہے, ٹھیک ہے. تو میں جب بھی کسی سے خیریت پوچھتا ہوں, میرے دوستوں کو پتا ہے کہ میں یہ نہیں پوچھتا آپ خیریت سے, میں کہتا ہوں سب اوکے کی رپورٹ ہے. وہ آگے سے جواب میں کہتے ہیں رپورٹ کیا ہے, اوکے کی. اس کا مطلب واقعی اوکے ہے, باقاعدہ رپورٹ ہے اس کے پاس. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بھی رپورٹ کیا ہے, اوکے کی رپورٹ ہے. جب بھی کوئی مسلم, اور اللہ اوکے کی رپورٹ ہی رکھے بھائی, زیادہ شو بازیوں میں بھی نقصان ہوتا ہے. تو اللہ اوکے کی رپورٹ ہی رکھے, خوش ہی رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو. اچھا مجھے لوگ اپنا تانے دینا شروع کر دیے لوگوں نے. پہلے جب میں بیان کرتا تھا نا اوکے کی رپورٹ ہے, 4 شادیاں 3 شادیاں, لوگ ایسے سنتے تھے ماشاءاللہ کتنا اچھا بیان. اب پتہ ہے کیا ہے, ابے اوکے کی رپورٹ تو ہوگی نا جب ریوو میں گھوم رہے ہیں. ہاں جب پیسہ آ رہا ہے تو رپورٹیں کیا ہوں گی, اوکے کی ہوں گی نا. یہ جو کھلکھلا رہے ہیں ممبر پہ, یہ اس کے پیچھے کیا ہے, پیسہ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہم تو اللہ کا شکر ہے خوشی ہیں الحمدللہ, ہمیشہ سے اللہ نے خوشی رکھا ہے. ہماری ضرورتیں اتنی محدود ہیں اور اللہ خوشی رکھے ہمیں. لیکن لوگ نا کسی حال میں الحمدللہ خوش نہیں ہے. ان کو یہ ہے کہ پہلے پھٹپٹی پہ گھوم رہے تھے اس کی ٹینشن, اب ریوو میں گھوم رہے ہیں تو اس کی بھی ٹینشن یہ لوگ لے رہے ہیں. تو یہ آپ کی ٹینشن ہے, آپ جتنی چاہو بڑھا لو. جب کسی کو ریوو میں گھومتا ہوا دیکھتے تھے, ہم اپنی پھٹپٹی پہ گھومتے تھے, اس وقت بھی ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی تھی, سمجھ رہے ہیں نا. اور جب ہم ریوو میں آ رہے ہیں تو بھی ہمیں ٹینشن نہیں ہو رہی. آپ کو پہلے بھی ٹینشن تھی کہ مفتی صاحب پھٹپٹی میں گھومتے ہیں اور باتیں 4 شادیوں کی کرتے ہیں. میری پھٹپٹی بائک دیکھی آپ لوگوں نے, ایسی بائکیں میں نے رکھی ہیں نا جن کے ماڈل ہی ختم ہو چکے ہیں, یعنی مارکیٹ میں بھی نہیں ملتی. میں نے رکھی ہے ہونڈا 110, کبھی نام سنا, ہونڈا 110. روزانہ صبح بائک کی بات کر رہا ہوں, دھکا لگتا تھا اس کو. ہم اس وقت اس سے زیادہ خوش تھے جتنے اب ہیں. میرا جو بچپن سے میرے ساتھ ہے نا, وہ مجھے زیادہ جانتے ہیں, وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہمیشہ میری باتیں کروڑوں کی رہی ہیں اور دکان میرے پاس پکوڑوں کی رہی ہے. اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ جو میرے بچپن کے دوست ہیں وہ جانتے ہیں پیسوں کی تو ہماری کبھی بات ہی نہیں کی, ہم نے نا پیسہ کمانے کی کبھی فکر کی ہے. تو پھر ہم نے گاڑی جب میں نے خریدی نا FX, پرانا ماڈل جس کی چھت پچکی ہوئی تھی, 40,000 قسطوں پہ میں نے گاڑی لی تھی.
40,000 किस्तों पे, 3,000 मंथली किस्त थी। लोग कहते थे इतनी सस्ती किस्तों पे कहां से मिल गई। जब गाड़ी देख के कहते थे मुफ्ती साहब किसी ने आपको चूना लगा दिया है, यानी इस पे भी महंगी है। उसी में हम रिश्ते लेने जा रहे होते थे, तीसरी शादी के। इसको कहते हैं दुकान पकौड़ों की, और बातें करो, खुशी खुशी जाते थे, खुशी खुशी। उसी गाड़ी को देख के रिश्ते रिजेक्ट भी होते थे, ठीक है ना। फिर भी हम अब से ज्यादा खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब से जितने आप खुश हैं इससे ज्यादा खुश। तो ना हम एफएक्स में हम परेशान थे। मैं तो इस पे खुश हो रहा था यार, हमारी औकात तो एफएक्स की भी नहीं है। 40,000 किस्तों पे मंथली थी। वो खरीदी क्यों मैंने, मेरे पास सोहराब मोटरसाइकिल थी। सोहराब का नाम सुना है? अच्छा, असल में मेरे पास थी GTO 125। मेरे वाले साहब का जब इंतकाल हुआ ना, पैसे मिले, हमने कहा गाड़ी हल्की नहीं रखे। हमारे शौक हमेशा से बादशाहों वाले रहे हैं। उस वक्त कराची में GTO 125 कावासाकी से बेहतर कोई बाइक नहीं होती थी। जो कराची के लोग हैं वो जानते हैं, सबसे लग्जरी बाइक यही थी। मैंने वो खरीदी थी और उसको मैंने 20,000 किलोमीटर तक चलाया होगा कम से कम, क्योंकि 70 किलोमीटर तो जामिया रशीद आने जाने की ड्राइव थी मेरी नेवल कॉलोनी से। ऐसी लग्जरी बाइक हमने रखी हुई थी। पैसा बचाते नहीं थे हम, उसकी टंकी में ही जो भरने में पैसा लगता था। तो हमने हमेशा से सोचा क्या है, ऊपर ही का सोचा है। जिसको बचाने की फिक्र होती है ना, वो मालदार बनने का शौक होता है, वो टेंशन लेता है। हमें मालदार बनने का शौक शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह था ही नहीं। हमने कहा जो है यार एंजॉय करो लाइफ, बीवियां भी रखो, बाइकें भी रखो, ठीक है ना, और खाओ भी अच्छा। 3 चीजें हमेशा से खानदानी रखने की कोशिश की है मैंने। एक, शादी पे खर्च करो। दूसरा, खुराक हमेशा टाइट है मेरी, ऐसी खानदानी खुराक हमें। भाई जबान की लज्जत जो है इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। खुराक पे कंप्रोमाइज ही नहीं किया, हमेशा अच्छा खाया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खाता था ना मदरसे में, तो तलबा समझते थे बड़ा ही लैंडलॉर्ड है, कोई कर्जे मांग रहे होते थे मुझसे, कर्जे। और जिस वक्त जिस चीज का दिल चाहा खा लिया, जितने पैसे हैं ना खा लो बस, ठीक है, बचाने के क्या करना है यार। तो हमने बाइक रखी हुई थी, जब मैं पेट्रोल डालता था उसमें टैंकी भरने में टाइम लगता था, लोग देखते पता नहीं कौन लैंडलॉर्ड है ये। हालांकि बस वो पेट्रोल ही के टोटल पैसे हैं, अब खत्म। बचाया कुछ नहीं, क्योंकि हमें मालदार बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। उसी तरह फिर क्या हुआ है कि जब वो अब्बा की विरासत मिली, हमने GTO 125 खरीदी और पैसे कारोबार में लगा दिए कि चलो जी मंथली अर्निंग होगी। वो मैंने वाकया कई बार सुना है, सारे पैसे कारोबार में डूब गए। लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिस जिसको देता गया वो लेके भागते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके फिर मुझे नतीजा ये निकला कि पराठे में छोड़ नहीं सकता था, तो बाइक मुझे बेचनी पड़ गई। समझ में आ रही है बात? अब खुराक में और बाइक में जब टकराव होगा तो बाइक को कुर्बान कर दो, खुराक को कुर्बान मत करो। अच्छा, बच्चे भी थे घर में, उनके भी खर्चे थे। बाइक बेच के हमने सस्ती बाइक खरीदी, सोहराब। अब पता नहीं आती है इतवार बाजार नहीं, वैसे पुरानी। अब जब हमने सस्ती बाइक खरीदी उसको लेके हम भी घूमते थे। हमारे दोस्त अहबाब भी, मुफ्ती साहब बाइक चाहिए, थोड़ी देर के लिए मिल जाएगी, ले जा भाई तू, सस्ती बाइक है, जो चाहे ले जाए इसको। वो क्या हुआ, उसका लॉक ही नहीं था, इतनी सस्ती थी, तो वो भी चोरी हो गई अल्लाह के फजल से। एक दिन मस्जिद में कोई नमाजी भाई आए, उन्होंने देखा कि ये लावारिस बाइक है और इग्निशन इसका लॉक ही नहीं होता, तो वो ले गए अल्लाह के फजल से। नमाज उन्होंने पढ़ी, उन्होंने कहा अगली नमाज में ये गुनाह माफ हो जाएगा। मैं जब आया तो बाइक ही नहीं है। अब मैंने कहा यार अब मैं गाड़ी खरीदूंगा। दुकान पकौड़ों की बातें कौन सी, कि मैं वाकयात आपको मोटिवेट करने के लिए सुना रहा हूं। और जो लोग मुझ पे ताने करते हैं ना, रिवो में घूम रहा है तो बातें तो करेगा ऐसी, तो ये मोटिवेट कर रहा हूं मैं। हर आदमी का अपना स्टाइल होता है ना मोटिवेट करने का। तो मैंने कहा अब सोहराब चली गई है, अब हम क्या लेंगे, गाड़ी ही लेंगे। 4 पहियों पे आएंगे भाई, बाइकें बहुत हो गई। 4 पहियों पे आए कहां से, 25,000 की सोहराब खरीदी थी, वो भी चोरी हो गई। तो अब हम क्या करेंगे भाई। फिर हमने क्या किया, मैंने कहा कि एक दोस्त है भाई, ये जो इशारा कर रहे हैं बैठ जाए ना, जो खड़े ना हो। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अब मैं गाड़ी खरीदूंगा। गाड़ी कहीं मिल नहीं रही थी, तो फिर एक शागिर्द के पास से 40,000 किस्तों पे मिल गई गाड़ी में, FX। चारों टायर उसके पंचर थे, छत उसकी नीचे पिचकी हुई थी। हम वो जनाजा उठा के ले आए घर पे। तो अब मैं मस्जिद का इमाम हूं, तो बहुत सारे मुरीदीन ने मिलकर ना ठक 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 उसको बनाना शुरू कर दिया। पैसे नहीं लगाए, यूं किया, छत ऊपर हो गई उसकी। FX में ये बड़ी बात है कि डेंटिंग पेंटिंग का ज्यादा, हाथ से ही डेंटिंग पेंटिंग का काम हो जाता है उसमें। तो बहरहाल हमें इसकी खुशी थी कि गाड़ी आ गई हमारे पास, रिश्ते मांगने में आसानी हो गई हमें। तो उसमें थोड़े 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 पैसे लगा के मैंने क्या किया, बिल आखिर अब मैंने कहा ये बहुत बहुत काम निकाल रही थी वो। मैंने कहा जैसे किसी ने मुझे पहनाई है तो अब ये किसी और को पहना दो आप। यही हल होता है पुरानी चीजों का, बीवी के अलावा जितनी भी पुरानी चीजें आप अब क्या कर दो, दूसरे को पहना दो। मैंने कहा बहुत थक गया, उस पर सारे पैसे उसी में लग रहे थे। तो हम इतवार बाजार गए, वो 80,000 में पहना दी हमने। इतना उस पर थोड़ा थोड़ा करके लग चुका था कि मुझे उसके 80,000 मिल गए। बड़ी बात थी उस जमाने में 80,000। बरकत देखो ना कैसी होती है। हमने क्या किया, अब आपकी तरह ये नहीं कि बच्चों को सिटी और बीकन हाउस में पढ़ाना है या बच्चे रोकने, हमने पैदा ही नहीं होने देना। उस वक्त बच्चे थे छोटे, अभी उनकी तालीम का खर्चा नहीं था, बहुत छोटे बच्चे थे मेरे उस वक्त, खुराक पूरी हो रही थी उनकी। जब बड़े होंगे, स्कूल का टाइम आएगा, उस वक्त सोचेंगे ये, अभी थोड़ी सोचने की चीजें। हम खुद भी तो किसी के बच्चे हैं ना। अभी मैं अपने वालिद साहब के बच्चों का सोच रहा था, यानी मैं अपना। तो हुआ ये कि हमने वो खरीद ली, आपकी अल्लाह भला करे, शेरार्ड ले ली मैंने, 1.5 लाख की मिली, 80 कैश दिए और 5,000 किस्तें। तो महल्ले में कहीं से मिले, हम आ गए किस पे, शेरार्ड पे। तो शेरार्ड में घूम रहे हैं भाई, उस पर खुश हो रहे हैं यार। हमारी औकात तो सोहराब की भी नहीं थी, अल्लाह ने क्या दिला दी, शुगर की तौफीक मिल रही थी ना। मुझे शुगर की तौफीक मिल रही थी। लोग मैं यार मेरी औकात तो नहीं है, हम तो मौलवी लोग हैं, हमारी तनख्वाहें देखो, जज्बे देखो हमारे। तो ये गाड़ी मिली, मैं तो उस पर वाकई बहुत खुश होता था। एकदम मैं गाड़ी लेकर गया हूं, किसी बड़े जलसे में मेरा खिताब था, लोग लैंड क्रूजर में बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे थे, मेरी बड़ा इस्तेकबाल हुआ। मैं गया, हमारे दोस्तों ने कहा मुफ्ती साहब FX में नहीं बैठना, जाके आपकी पर्सनैलिटी पे ये FX सूट नहीं कर रही है, क्योंकि यहां बड़े बड़े उलमा आए हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में। मैंने कहा ऐसी की तैसी भाई, हम किस में बैठेंगे, अपनी FX में। तो अल्लाह ने बेइज्जती लिखी हुई थी, जब मैं बैठा हूं तो चली भी नहीं रही थी। 6 आदमियों ने धक्का लगाया उसको, यानी वो जितनी इज्जत बचाना दोस्त चाह रहे थे ना, तो और हमने एंजॉय किया। हमने कहा भाई इन चीजों में इज्जत जिल्लत बोलो ना, नहीं इन चीजों क्या होता। हमारा मकसद था बयान करना, बयान अगर अच्छा हो गया तो ठीक है, मैं गधे पे जाऊं, मैं घोड़े पे जाऊं, मैं साइकिल पे जाऊं,
मैं एफएक्स में जाऊं? मैं आपको इसलिए ये सारे वाकया शो मारने नहीं बता रहा, खामखा की टेंशन क्यों पाली हुई है भाई तुम लोगों ने? बिला वजह अपना मैयार इतना ऊंचा क्यों रखा हुआ है? वो मैयार नहीं मिलता तो टेंशन में जाते हो फिर। हम तो ये सोच रहे थे यार हमारी औकात मोटरसाइकिल की नहीं है, अल्लाह ने 125 दिला दी GTO। हमारी औकात तो 125 की नहीं, अल्लाह ने FX दिला दी। हमारी औकात तो FX की है, अल्लाह ने शराड दिला दी। नहीं यारी बात समझ में, हम शराड में घूम रहे हैं भाई, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। वो शराड भी गई, कैसे गई? बड़ा दुख भला वाकया है। मुझे फ्रॉडी मिल गया, बस फ्रॉडी बहुत मिले हैं। वो शराड, उसमें एक आखिरी जो धचका लगना था ना मुझे, शराड बिक गई मेरी। अब जब शराड गई तो हम फिर रोड पे आ गए ठीक है। तो मैं फिर यहां से बसों में जाता था W11। अब मैं उस वक्त मशहूर हो चुका था तो मुझे W11 में लोग पहचानने लगे थे, मुफ्ती साहब आप बस में? 2 मिनट की चुरंगी है ना यहाँ पे, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं आ रहा था वहां उतरने, यार आप बस में? मैं कहा मेरे बस में ही जाना रह गया है इसके अलावा मेरे बस में है नहीं। तो मैं खुश था उस पे, और अल्लाह की कसम खुश था, ऊपर से नहीं कि मैं वो कर रहा हूं, मैं बहुत खुश था अल्हम्दुलिल्लाह कि यार मेरी जरूरत तो इसकी भी नहीं है, अल्लाह मुझे बस का किराया तो है ना, वरना बहुत से लोग तो बस का किराया नहीं होता। जज्बे उसी तरह, रिश्ते नहीं, गिलगित जा रहा हूं रिश्तों के लिए। लोग कह रहे हैं आपके पास है कि भाई मेरी टोटल मेरी अर्निंग है मंथली, इसमें अल्लाह का शुक्र है गुजारा अच्छा हो रहा है, तो आपकी बच्ची का भी गुजारा हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं होगा, हमने कहा जाओ, नहीं होगा तो बाहर में जाओ, ठीक है ना, किसी के सामने बिक थोड़ी मांगनी है ऐसी की तैसी। अच्छा खैर, फिर मिल भी जाते हैं रिश्ते। तो उसी गुर्बत में हमारी तीसरी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी हो गई? तीसरी। अच्छा भाई, तो हमें इसकी भी खुशी के औकात हमारी एक ही भी नहीं है, और शादियां कितनी हो गई, हो जाती हैं कि मैं आपकी भी हो जाएंगी, और अच्छे अच्छे लोग मिल गए मुझे। लेकिन मैं जैसे जैसे देख रहा था कि मेरी शादियां हो रही हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, मेरी सोर्स ऑफ इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। ऐसे ऐसे जराए से रिस्क मिल रहा है जहां से तसव्वुर भी नहीं था, ऐसे ऐसे जराए से रिस्क मिल रहा है जहां से तसव्वुर भी नहीं है। अब मैं उनको वाकया सुनाऊं, आपके होश उड़ जाएंगे। कैसे कैसे जराए से जरूरतें पूरी हो रही हैं, स्टॉक कुछ भी नहीं हो रहा है, एक थैला भी जमा नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे फिक्र नहीं है कि कल कहां से खाऊंगा, कल कहां से अगले महीने। भाई जब अब तक अल्लाह ने रखा हुआ है ना, तो आगे भी हो जाएगा। फिर एक दिन मुझे मेरे घर में बड़ा खर्चा आ गया, एक बड़ा खर्चा, यानी डॉक्टर ने कहा डिलीवरी ऑपरेशन से होगी, ऑपरेशन के पैसे नहीं थे मेरे पास। बच्चा पैदा होने का वक्त आया और डॉक्टर ने कहा बड़ा ऑपरेशन होगा, और बड़े ऑपरेशन में अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। वो पैसे मेरे पास बोलो नहीं थे। समझते हो कि नहीं समझते? तो मैं क्या करता भाई, कोई बात नहीं भाई। ससुराल से फोन आया, पैसों की जरूरत तो नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्त साहब ने कहा पैसों की जरूरत तो नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं कहां से, मुझे नहीं पैसे। दिमाग लड़ाया कि क्या करो, कोई बात नहीं, घर में ऐसी चीजें होती भेज दो उसको यार, क्या ख्याल है भाई? भाई घर में सब चीजें भेज दो यार, अभी जरूरत पूरी करो, कोई बात नहीं, फट्टे पे सोएंगे यार, क्या है इसमें? भीख मांगने से बेहतर है लोगों के सामने अपनी गुर्बत, और भीख मांगने से बेहतर है फट्टे पे सो जाओ। सुबह रात की बची भी, मैं ऐसे उलमा को जानता था जिनकी 2 बीवियां थी, सूखी रोटी सुबह कहवे में डबो के खा रहे थे वो। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है समझ में, ऐसे गरीब लोग भी मेरे इल्म में है। तो हमने कहा यार हम भी किस पे आ जाएंगे। तो अब मैंने गौर लड़ाया तो मुझे एक बकरी नजर आई अपनी, एक इजाफी। मैं उसके पास गया, उससे मैंने माजरत की वो एक इजाफी चीज थी, उसकी तो दिमाग नहीं आ रहा था मेरा। मैंने कहा मैं आपसे माजरत चाहता हूं, आपको भेंट चढ़ाना पड़ गया मुझे ठीक है, समझ में आ रही है बात? अल्लाह का करना ये हुआ कि हमारे एक दोस्त आए, बहुत ही करीबी जिगरी दोस्त, उन्होंने मुझे कुछ पैसे कर्ज में दे दिए बगैर मांगे। उनको पता था कि यार मुफ्ती साहब का अभी केस है, अभी अचानक इनके लिए पैसों का इंतजाम करना मुश्किल होगा। वो आए, उन्होंने मुझे पैसे दिए। तो मैंने कहा भाई मेरा तो ये था कि कल बकरी बेचूंगा और ये अपने घर के सारा सामान बेच के, जो भी बिक सकता है बेच के मैं इनका कर्ज अदा कर दूंगा। तो वो मुझे खुद दे के चले गए। वो मामला तो निबट गया, बच्चा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो बच्चा माशाल्लाह चलता कूदता है, पुराना तो बड़ा हो गया। उसको नहीं पता, उसको भी ये वाकई नहीं पता कि तू कैसे पैदा हुआ है। घर वालों को भी नहीं पता, ये भी बता दूं, मेरे घर वालों को भी मालूम नहीं, मेरे ससुराल को भी पता नहीं। ये पहली दफा मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, और ये भी इसलिए शेयर कर रहा हूं कि लोग बहुत ताने देते हैं आजकल ना, उल्टी उल्टी बातें बहुत कर रहे हैं मेरे खिलाफ। तो मैंने क्या किया, वो एक साहब हमारे करीबी दोस्त थे, ये नहीं कि उनके सामने मैं पैसे ही नहीं है, यूं है यार। बाज़ दफा पैसे आदमी ऐसे नहीं मांग रहा होता, रोना शुरू कर देता है, उससे अगला खुद ही समझ जाता है कि पैसे नहीं। खैर जी, उन्होंने मुझे लोन दिया कर्जा के, कल दे देना। अच्छा, कर्जा भी ऐसा कि मैंने कहा कल मैं दे दूंगा। जब उन्होंने बहुत इसरार किया, मैंने कहा ठीक है फौरी तो जमा करा रहे, मैंने कल मेरे यही था। अगले दिन क्या हुआ है कि मैंने कहा बकरी भी और ये सब चीजें बेचने के लिए मैंने बात की, वो मेरे पास आए और मैंने कहा आपका कर्जा आपको इंशाल्लाह मगरिब तक मिल जाएगा वापस। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए। वो दोस्त था, कहता मैंने कभी आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। मैंने कहा भाई आपको वापस लेना पड़ेगा, क्या मैं किसी का बाप भी नहीं दे सकता, नहीं लूंगा वापस। मैं अंदर अंदर से जितना खुश हो रहा था ये मैं जानता हूं, और कौन जानता है? अल्लाह जानता है। अंदर से जो मैं खुश हो रहा था ना कि मेरी इतनी बड़ी टेंशन उसने क्या कर दी, दूर कर दी। और एक ऐसे आदमी ने जिससे कभी गिफ्ट और तोहफे तारीफ का कोई लेन देन जिंदगी में रहा ही नहीं है। यानी ऐसा होता है ना कि बाज लोग होते हैं जो तबादले चल रहे होते हैं, एक ऐसा आदमी। तो मैं उसको बार बार इसरार किया। अब क्या हुआ है कि मेरा दिल तो चाहा कि मैं बेतहाशा शुक्र अदा करूं इसका, लेकिन मैंने शुक्र भी ज्यादा अदा नहीं किया। पूछो क्यों? अगर मैं अपनी खुशी का इजहार करता ना उसके सामने कि मैं बहुत खुश हूं, उसके जहन में ये बात आती कि ये बेचारा बहुत गरीब है, तभी इतना खुश हो रहा है, इतनी रकम पे कोई इतना ज्यादा खुश बोलते क्यों नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? नॉर्मली शुक्रिया अदा किया मैंने, दुआएं बहुत की फिर उसके लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा कि अल्लाह इसने मेरी इतनी बड़ी टेंशन दूर कर दी, तो इसके माल में बरकत दे, इसके रिस्क में बरकत दे, इसको क्या पता कि इसने मेरे साथ किया है।